Hello guys, welcome to my accountancy class, the channel The Master's World. Before I start the video, give a like to the video and subscribe the channel so that what the new videos I make here can reach to you first of all and you may have the first mover advantage. Now, the topic of today's class is accounting principles. And the first principle is the full disclosure principle. Check here, the first full disclosure. Full disclose means whatever the transactions are being recording in the business, in the books of the accounts, should be given or not, footnote, or the relevant informations, the necessary informations must be disclosed so that the informations from the records can be assessed and can be understood by the accounting users of information, and they may take some decisions, necessary decisions. Here we can say that all the material as well as the significant means important informations should be disclosed. जो भी आप परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सैलरी दी, कमीशन लिया, रिसीव, all the types of information regarding anything should be disclosed by you. Whenever we pass the journal entry, in my last video I passed the journal entry, one journal entry. I did not taught, but I gave you the example while teaching a topic. After the journal entry, and narration is written disclosing the event or the business transaction. जब आप कोई जर्नल एंट्री पास करते हैं तो एक नरेशन देते हैं जिसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज किया जाता है। लास्ट में हमने टॉपिक पढ़ा था मॉनेटरी टर्म्स में मेजर। बिजनेस ट्रांजैक्शन को मनी में मेजर तो किया जाता है, उसे रिकॉर्ड भी किया जाता है, लेकिन एक फुल डिस्क्लोजर दे दिया जाता है कि वो कितने आइटम्स परचेज किए थे, क्या फीचर्स थे, कलर्स थे, किससे, कब, डेट क्या सब था, किस डेट में, ताकि मीनिंगफुल इंफॉर्मेशंस निकल कर आ सकें। कहते हैं all the types of informations, all the necessary information should be disclosed while recording any business transactions in the books of the accounts, so that it may have some evidence, can be take useful informations, meaningful informations can be taken from that. अब कहते हैं रीजन फॉर लो टर्नओवर, जैसे कि अब आप फुल डिस्क्लोजर की बात करें, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। आपके बिजनेस में लो टर्नओवर रही, सेल कम रही, तो रीजन क्या था वो आप डिस्क्लोज कर सकते हैं। या आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा आ गई तो उसको भी आप डिस्क्लोज कर सकते हैं, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द हायर कॉस्ट ऑफ पर यूनिट। मींस ऑल द टाइप्स ऑफ डिस्क्लोजर्स कैन बी गिवन बाय द अकाउंटेंट so that there may be some meaningful informations for the users of accounting information, that is management, suppliers, etc. Next, materiality principle. Materiality principle says that only those important necessary transactions should be disclosed, non-disclosure of which may lead to an effect on the decisions of the accounting information users. मैटेरियल कॉन्सेप्ट कहता है कि कम से कम वो जरूरी तो इंफॉर्मेशंस डिस्क्लोज कर दी जाएं जिनके डिस्क्लोज ना करने पर यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के डिसीजन पर फर्क पड़ जाएगा। कि कम से कम वो बातें तो बता दो जो बतानी चाहिए। यदि आपने इन्हें छिपा दिया तो नेसेसरी इंफॉर्मेशन नहीं निकल पाएगी और जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस हैं वो अपने डिसीजन सही से शायद ना ले पाए। अब मैटेरियलिटी इंपॉर्टेंट, मेन थिंग में आप कह सकते हैं मैटेरियलिटी। तो कुछ एंटरप्राइजेस के लिए कुछ इंफॉर्मेशन मैटेरियलिटी होती हैं और कुछ के लिए नहीं। लास्ट टाइम हमने एग्जांपल दिया था एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का, लास्ट वीडियो देखें उसमें आपको मिलेगा एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अब आप यदि बात कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट की, एक पान की दुकान है, पान की शॉप, उसने एडवर्टाइजमेंट कराया 2 लाख रुपए का। एडवर्टाइजमेंट पर एक छोटी सी शॉप 2 लाख रुपीस का एडवर्टाइजमेंट करा रही है, तो आप क्या कहेंगे, यार इसका खर्चा मत दिखाओ, डोंट शो इट एज एक्सपेंस फॉर दैट वेरी शॉप, it should be considered as an asset because this expense on advertisement is going to give the benefit for more than one accounting year, and it should be given, the accounting treatment should be written off in more than one accounting year. कि जो पान की दुकान ने 2 लाख रुपए का एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा किया है, इसे एक साल में मत दिखाओ, इसका फायदा उसको तो कई सालों में मिलेगा, इसे खर्चा ना दिखाकर असेट दिखाओ। On the same example, when the amount of rupees 2 lakh is being spent by
रिलायंस कंपनी के लिए 2 लाख रुपीज, वहां तो हजारों करोड़ों की बात चलती है। इतनी बड़ी कंपनी है, 2 लाख का क्या होता है एडवर्टीजमेंट? कुछ नहीं, एक बार आप चैनल में दो, 1 सेकंड का एडवर्टीजमेंट दो, 2-4 सेकंड का, 2 लाख रुपए खत्म। तो आप क्या कहेंगे? पान की दुकान के लिए वो एडवर्टीजमेंट मटेरियल है, एसेट की तरीके से काम करेगा। और वहां जहां आपने रिलायंस कंपनी की बात करी तो 2 लाख रुपीज का, 3 लाख, 5 लाख रुपीज का कोई एडवर्टीजमेंट ऐसा खास नहीं होता। तो वहां वो एज एक्सपेंस शो किया जाएगा। तो कहीं तो वो एक्सपेंस शो किया जा रहा है और कहीं असेट शो किया जा रहा है। मींस सम इंफॉर्मेशंस मे बी मटेरियल फॉर एनी एंटरप्राइज, ऑन द अदर हैंड फॉर अदर एंटरप्राइज इट मे नॉट बी मटेरियल। तो रिलायंस कंपनी के लिए मटेरियल नहीं है, मींस इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, वो शो कर देगा एक्सपेंस हुआ है, ठीक है। ऐसे ही आप बिल्डिंग में रिपेयर की बात करते हैं। एक के पास बिल्डिंग है जिसकी सेल पर्सन की 2-3 लाख रुपए होती रहती है, प्रॉफिट होता रहता है, ठीक है, थोड़ा बहुत। उसने बिल्डिंग रिपेयर करवाई और 1,50,000 का स्पेंड कर दिया रिपेयर में। 1,50,000 इज अ ह्यूज अमाउंट फॉर दैट वेरी बिजनेसमैन। इट विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द असेट। तो आप समझ सकते हैं बिल्डिंग छोटी मोटी रही होगी, 1.5 लाख रुपए की रिपेयर उसने कराई है, जिसकी सेल ही 2.5-3 लाख रुपए की होती है बस। तो उसके लिए मटेरियल है, एसेट की तरीके से कंसीडर हो सकता है। बट ऑन द अदर हैंड एक ऐसा बिजनेसमैन जिसकी टर्नओवर सेल करोड़ों रुपए में है, 2 करोड़ 4 करोड़, उसने यदि 2-3 लाख रुपए की रिपेयर करवा दी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में, तो उसके लिए तो खर्चा माना जाएगा, असेट नहीं। छोटी मोटी रिपेयर चलती रहती है, एक्सपेंस। पहले के लिए वो असेट और दूसरे के लिए एक्सपेंस। So these types of informations must be disclosed, which are important to be disclosed. Non-disclosure of which may lead to the impact on the decisions of the users of accounting information. यदि आपने इस तरीके की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करी तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के डिसीजन पर फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इज हियर, most important, that is prudence, conservatism principle. लास्ट क्लास में हमने आपको एग्जांपल दिया था सेल एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट का। मैं उसकी थ्योरी फिर से बताता हूं। एक्रूअल बेस प्रिंसिपल क्या कहता है? When any expense or revenue or income recognized, it should be recorded in the books of accounts, whether cash transaction took place or not. जैसे ही कोई इनकम, एक्सपेंस या रेवेन्यू जनरेट हुआ, रिकॉग्नाइज हुआ, उसे आप शो कर दो, चाहे कैश ट्रांजैक्शन हुई हो या ना हुई हो। एग्जांपल आई गेव इन द लास्ट पीरियड, फॉर एग्जांपल परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, नगद माल खरीदा, उधार खरीदी गुड्स, आपको दोनों ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, वेदर कैश ट्रांजैक्शन टेक प्लेस और नॉट। इन द सेम मैनर आपने सेल कर दी, आज सेल की है, इस अकाउंटिंग ईयर में सेल की है, तो सेल दिखाएं, वेदर कैश कम्स और नॉट, चाहे उधार बेचा हो या नकद बेचा हो, आपने रिकॉर्ड करनी है, यू हैव टू रिकॉर्ड दैट। तो क्रेडिट सेल आपने रिकॉर्ड कर दी, उसी के हिसाब से आप कहेंगे सर जब आज क्रेडिट सेल हमने रिकॉर्ड कर दी, 1 लाख की गुड्स थी, 5 लाख में सेल कर दी, रिकॉर्ड कर दी, कैश अभी आया नहीं, 4 लाख का प्रॉफिट हो गया, 1 लाख की परचेज, 5 लाख की सेल, डिफरेंस 4 लाख का प्रॉफिट, कैश तो आया ही नहीं है, और इस प्रॉफिट पर इनकम टैक्स वाले आएंगे, इनकम टैक्स लेकर चले जाएंगे, कैश क्या पता कल को आए भी ना। तो ये जो हमारे कस्टमर्स होते हैं, द कस्टमर्स टू होम वी सेल द गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस आर कॉल्ड डेटर्स, ये डेटर्स कहलाते हैं। बात तो आपकी सही है कि हाँ यार 4 लाख रुपीस का प्रॉफिट जनरेट हुआ, इस पर इनकम टैक्स वाले इनकम टैक्स ले जाएंगे, और शायद मार्केट में फ्यूचर में प्रॉफिट थोड़ा बहुत पैसा डूब जाए, लास्ट मैंने अकाउंटिंग क्लास में आपको बताया था बैड डेट कहलाता है। क्या कहलाता है? बैड डेट। कि जो मार्केट में हमारे कस्टमर्स, जो हमारे डेटर्स हैं, जिनको हम उधार मांग बेचते हैं, पैसा उनसे डूब जाता है यदि, तो बैड डेट। तो हम कह सकते हैं जो 4 लाख का प्रॉफिट हुआ है, इनकम टैक्स वाले पूछेंगे अच्छा ये बताओ आपके डेटर्स कितने मार्केट में? जी 5 लाख। कितना परसेंट डूब जाएगा? 10% डूब जाएगा, 20% डूब जाएगा। क्या कहना चाह रहे हैं ध्यान से देखो बेटा। सेल ₹5 लाख, कॉस्ट ₹1 लाख, प्रॉफिट
दैट इज द कॉस्ट। प्रॉफिट ₹4 लाख माइनस कर दी। अब हमने कहा जी हमारी जो सेल थी वो क्रेडिट सेल थी, और क्रेडिट सेल क्या बन गए आपके डेटर्स। वो कस्टमर जिनको उधार माल बेचते हैं वो डेटर्स कहलाते हैं। आपने सेल कर दिया, तो 5 लाख की सेल थी, 1 लाख का माल खरीदा था, कॉस्ट थी आपकी, माइनस करने के बाद ये प्रॉफिट बचा आपका 4 लाख का। माइंड में क्वेश्चन आया कि शायद मार्केट में पैसा डूब जाए, तो अब आप बताओ कितने परसेंट डूब सकता है? 10%, 20% डूब जाएगा, मान लो। डूबना तो नहीं है, कंफर्म नहीं है ना, शायद डूब जाए। शायद डूब जाए, ऐसे लॉसेस के लिए हम प्रोविजन बना लेते हैं। प्रोविजन मींस इस प्रॉफिट का एक पार्ट हम साइड में कर लेते हैं, जो कहलाता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। डी फॉर डाउटफुल, डाउट, कि शायद डाउट है कि पैसा डूब सकता है। और ये क्या होगा? 20%, मान लो शायद 20% डूब जाए। 20% ऑफ डेटर्स, मेक इट पॉइंट बेटा, 20% ऑफ डेटर्स, शायद पैसा डूब जाएगा मार्केट में। और डेटर्स कितने के हैं आपके ऊपर? 20% ऑफ 5 लाख रुपीस के, तो आपका शायद 1 लाख रुपीस डूब जाएंगे। अभी डूबे नहीं है, प्रोविजन बनाया है। इस तरीके से आपका नेट प्रॉफिट निकल कर आया ₹3 लाख। आप 3 लाख पर टैक्स दे दें। आई रिपीट अगेन, आपने 1 लाख की गुड्स परचेज करी, 5 लाख रुपीस में सेल कर दी डेटर्स को। 5 लाख की सेल माइनस कॉस्ट 1 लाख की, प्रॉफिट आ गया 4 लाख। इनकम टैक्स वाले इनकम टैक्स लेने आए। आपने कहा सर हमने उधार माल बेचा, शायद मार्केट में पैसा डूब जाए। देयर मे बी द बैड डेब्ट, देयर मे बी द अमाउंट व्हिच मे नॉट बी रिकवरेबल फ्रॉम द डेटर्स। ठीक है, यदि ऐसा है तो ठीक है, कितना डूब सकता है बताओ? प्रॉफिट तो 4 लाख है, शायद सर 20% ऑफ द डेटर्स में बी बैड डेब्ट, मे बी बैड डेब्ट, नॉट कंफर्म। कंफर्म नहीं है तो प्रोविजन बनाओ। प्रोविजन, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रोविजन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। 20%, हमारा 20% डूब जाएगा, तो डेटर्स का 20%, 1 लाख रुपीस आपने माइनस कर दिया। ये ब्रैकेट शोज द नेगेटिव फिगर्स, तो माइनस कर दिया, आपका ये नेट प्रॉफिट बचा 3 लाख का, इस पर टैक्स दे दें। तो प्रूडेंस क्या कहता है? प्रूडेंस कहता है लुक इनटू द फ्यूचर। फ्यूचर में देखो कि शायद फ्यूचर में पैसा डूब जाए, तो क्या देखो? देयर मे बी एनी लॉस इन द फ्यूचर। प्रूडेंस क्या कहता है? लुक इनटू द फ्यूचर, एंटिसिपेट इन द फ्यूचर, ये शायद पैसा मार्केट में डूब जाए। लुक इनटू द फ्यूचर। तो प्रूडेंस कहता है एंटिसिपेट इफ देयर इज एनी एक्सपेंस और लॉस इन द फ्यूचर। एंटिसिपेट मींस फ्यूचर में देखना। तो आपने फ्यूचर में देख लिया शायद पैसा कोई डूब सकता है मार्केट में, और उसके लिए प्रोविजन बना दिया। एंटिसिपेट इफ देयर इज एनी लॉस इन द फ्यूचर, बट डू नॉट एंटिसिपेट इफ देयर इज एनी प्रॉफिट इन द फ्यूचर। आप फ्यूचर में एंटिसिपेट करें, लुक इनटू द फ्यूचर करें कि यदि कोई लॉस है और उसके लिए प्रोविजन बना लें आज और अकाउंट्स में शो कर दें। बट डोंट एंटिसिपेट इफ देयर इज एनी प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे? जब आप कह रहे हो आपके कस्टमर ने आपका पैसा शायद डूब सकता है, बैड डेब्ट हो सकता है, इसी तरीके से हो सकता है हमने किसी क्रेडिटर से उधार माल खरीदा हो और हमें पूरी कंफर्म है, उम्मीद है कि वो हमारा क्रेडिटर हमें फ्यूचर में डिस्काउंट देगा। फ्यूचर में जो हमारा पैसा डूबेगा कस्टमर से, वो तो उसके लिए प्रोविजन बना लो, लेकिन जो हमारा क्रेडिटर सप्लायर हमें डिस्काउंट देगा अभी रिकॉर्ड मत करो, और जब डिस्काउंट दे तब शो करना। ये प्रूडेंस कहलाता है कि जो एक्सपेंसेस आपको लगते हैं, हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड हैं, प्रोविजन बना सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कोई इनकम हो सकती है, कोई फ्यूचर में प्रॉफिट हो सकता है, उसके लिए प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। This principle says that anticipate if there is any losses in the future, but do not anticipate any profit in the future. Anticipate any loss in the future and you can make the provision for doubtful debt and you can charge it from P&L. Charge from P&L means profit से charge करना, profit को घटा कर दिखाना. But don't make any provision for any profit. For example, don't make any provision for the discount
from the creditors if it is in the future, and don't show in the P&L. I hope that you have got these three concepts, principles of accounting. In the next video, I'll teach the next remaining concepts. Thank you. I hope you have liked this video. Have a nice day.